دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس واقعے کو بیان کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ جو واقعہ اصحاب کہف ہم قصص الانبیاء کتاب سے لینے والے ہیں۔ بیان حضرت اصحاب کہف۔ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کو تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا کہ اس کا ہاتھ جائے مقعد پر نہیں پہنچتا تھا۔ بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی بات مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اچنبھا تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے کہ کیوں کر اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرور کو گیا تھا، اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا نہ پایا کہ اس کی مقد کو دھلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر اور حکم کیا کہ اس کے سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ جس کا عہدہ جائے ضرور کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سب سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سماء کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے گا۔ یہ بات سب بھائیوں نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بصورت چشم قبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون چگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو ایسی چستی اور چالاکی سے چگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا، اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے جانا۔ اس طرح سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں، اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم بالجزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لعنت اللہ۔ اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالا خانے پر سے اس کے پاس اچانک آ گری۔ اس کے گرنے سے وہ ملعون بہت ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ ملعون خدا ہوتا
तो बिल्ली से क्यों डरता, ये मरदूद झूठा है। और इसी घड़ी एक शैतान बासूरत इंसान इसके आगे आकर कहने लगा, ए मलऊन, अगर तुझको दावा खुदाई का है तो अदना तरीन एक जी रूह जानवर मक्खी है, इसको तो पैदा नहीं करते। शैतान बोला, खुदा ने तो इसको पैदा किया है, अलबत्ता कुछ हिकमत होगी। वह मलऊन बोला, इसमें क्या हिकमत होगी। इसके जवाब में शैतान बोला, जब तू जाए ज़रूर में जा बैठता है, वह मक्खी तेरी गंदगी में बैठकर अपने हाथ पाँव में नजासत आलूदा करके तेरी दाढ़ी पर जा बैठती है, ये भी एक कार हिकमत है। ये कहकर वो शैतान गायब हो गया और वो मलऊन ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। बस दूसरे दिन दकियानुस चुगान खेलने को मैदान में गया और इन शहजादों को भी अपने साथ ले लिया। बस जब वो मैदान में पहुंच गए तो चुगान का खेल खेलने लगे। दकियानुस शहजादों के खेल से बहुत महजूज हुआ और बोला, सुबह को तुम सबको खिल्लत दे दे कर खुश करूंगा। जब शाम हुई और दिन भी खत्म हो गया, शहजादे अपने मशवरे के मुताबिक चुगान मैदान से फेंकने लगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलते हुए दूर तक निकल गए। दकियानूस इन लोगों को खेल में मशगूल छोड़कर अपने महल की तरफ चल दिया और वो शहजादे फुर्सते कमाल पाकर खुदा को याद करके वहां से निकल पड़े। मैदान की तरफ घोड़ा उठा के रात ही रात चले गए। जब सुबह हुई, अपने घोड़ों को छोड़कर किसी शहर के किनारे जा पहुंचे। वहां देखा कि चंद आदमी पासबान बकरी वगैरह के थे। इनसे मुलाकात हुई। वो सब कहने लगे कि ए अजीजो, तुम कहाँ जाते हो। तो उन्होंने इनको जवाब दिया कि हम लोग खालके अरज़ व समा की तलब को जाते हैं। वो कहने लगे कि वो कैसा है जिसे तुम लोग चाहते हो। वो बोले कि वो खुदा ज़मीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है वो सब का परवरदिगार है। तमाम कायनात को मुल्के वजूद में लाने वाला वही खुदा है। बस इन सब बातों से वो लोग बहुत खुश हुए और आपस में कहने लगे कि ये सब लोग सच कहते हैं। तब वो भी अपनी पासबानी छोड़कर शहजादों के साथ मिल गए और इनकी सोहबत इख्तियार कर ली। और एक कुत्ता भी इनके साथ था, वो भी इनके हमरा लिया। वो शहजादे इन लोगों से बोले कि तुम लोग इस कुत्ते को वापस कर दो तो बहुत है, वरना हमारे साथ रहेगा तो कभी भौंकेगा और इसकी आवाज़ सुनकर लोग हमको आ पकड़ लेंगे। इन शहजादों के कहने से इन पासबानों ने अपने कुत्ते को मारा पीटा और यहाँ तक कि इसके हाथ पांव भी तोड़ डाले और सारा बदन इसका जख्मी कर दिया। तो भी इस कुत्ते ने इन लोगों का पीछा न छोड़ा। आखिर वो कुत्ता भी इन लोगों के साथ रह गया और अल्लाह ताला ने इसको कुव्वत गोयाई सिखाई। तो कुत्ते ने कहा कि ऐ यारो, मुझे मत मारो, तुम जिसके बंदे हो मैं भी इसका फर्मा बरदार हूँ और तुम जिसकी याद को जाते हो मैं भी इसी को चाहता हूँ, लिहाजा मुझको भी तुम अपने हमराह ले चलो। बस कुत्ते से ये बातें सुनकर असहाबे कहफ को तरस आ गया और उसे प्यार करके अपने हमराह ले चले। तमाम रात चलते चलते जब सुबह नमूदार हुई तो एक पहाड़ के अंदर खूह में जा घुसे और बोले, यहाँ दम जरा लेना चाहिए कि रात की मान दूर हो जाए। आखिर वहाँ ठहर गए और आराम करने लगे और वो इसी आराम की रात में थे कि नींद का गलबा हुआ और वो सो गए। तो अल्लाह ताला का फरमान है, जब जा बैठे वो जवान इस खूह में, फिर वो बोले, ऐ रब, दे हमको अपने पास मोहर और बना दे हमारे काम। बस पर्दा डाल दिया हमने ऊपर कानों इनके यानी सुला दिया। हमने इनको बीच गार के कई बरस गिनती के, फिर उठाया हमने इनको कि वो मालूम करें हम दो फिरकों में से किसी ने याद रखी है जितनी मुद्दत वो सोए रहे थे। अलगरज दकियानूस ने इस खेल के मैदान में इन शहजादों को ना पाके बहुत तासुफ किया। वो फौरन ही अपने होशियार चंद सवारों को इनके पीछे दौड़ाया। तफहसो तजस्सुस करते हुए इसी खूह के जा पहुँचे और खुदा के फजलो करम से इस गार का मुंह भी चूंटियों के सुराख जैसा बना दिया और वो सवार इस पर बराबर तलाश करते रहे, लेकिन वो इनका नामो निशान ना पा सके। आखिर मजबूरन वापस चले गए और बात रवायत में यूं आया है कि इस खूह के किनारे पर इन सब को मुर्दा पाया तो वो लोग इसी खूह में डालकर चले आए थे और इसी दिन से
इन सब का नाम और लक़ब असहाबे कहफ हुआ। और बादों ने इस रवायत को यूं भी बयान किया है कि वो बादशाह के बावर्ची के बेटे थे और बाद इनमें नान बाई के बेटे थे। और बादशाह दकियानूस ने इनमें से एक को जादू सीखने को जादूगर के पास भेजा था। एक दिन इस लड़के की आसनाए राह में एक राहब से मुलाकात हुई। राहब बोला, तुम कहाँ जाते हो? वो बोला, मैं जादू सीखने जाता हूँ। राहब बोला, बेटा जादू सीखना तो कुफर है, तू मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? तब वो राहब के कहने से और खुदा के फजलो करम से इसी वक्त ईमान ले आया और मुसलमान हो गया। बादशाह दकियानूस इस बात को सुनकर बहुत खफा हुआ और इस लड़के को फांसी का हुक्म दे दिया। रवायत में है कि इस लड़के को 5 मरतबा सूली पर चढ़ाया तो भी ना मरा और अल्लाह के फजल से सलामत रहा और कहा, अमनतु बिरब्बिल आलमीन। आखिर इसको बादशाह दकियानूस ने कैद शदीद में रखा। इसके हम जिन्स और 5-6 लड़के दकियानूस बादशाह के मुलाजम थे। उन्होंने बाहम सलाह मशवरा करके किसी हीले से इसको कैद से छुड़ा लिया और इसके बाद वह मुतफिक होकर इस जालिम बादशाह के कब्जे से इस शहर से बाहर खुदा की इबादत को निकले और एक पहाड़ की तरफ चले गए और वहां जाकर एक खूह में बैठ गए और वहीं सो गए। और इन पर खुदा की तरफ से ऐसी नींद डाली गई कि वो तकरीबन 300 बरस तक सोते रहे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, और वो इस खूह में सोते रहे 300 बरस। और असहाबे कहफ के नाम हैं और असहाबे कहफ के नाम में और इनके आदाद में बहुत इख्तलाफ है। ये सब के सब अहले रूम थे और इनका गार भी अर्ज़े रूम में है। और बात कहते हैं कि हज़रत ईसा के दीन में थे और कामूस में लिखा है। और इब्ने कुतुबा रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत की है कि सहाबे कहफ का दीन अल्लाह ताला को मालूम है फ़कत, और वो किसी नबी शरीयत के साथ मुंसलिक नहीं हुए, मगर जिसने इनकी खबर पाई मोतकद हुए और इनके पास मकान ज़ियारत बना दिया। वो नसारा थे और इनके नाम ये हैं, यमलीखा, मकसलमीना, मरतूनस, सबयूनस, दरदूनस, कफाशितीतूस, मंतन वासीस। ये है असहाबे कहफ। और 8वां इनका कुत्ता है कि कुत्ते का नाम कुतमा था। कामूस में यही लिखा है, लेकिन शमार इनका सिवाय खुदावंद ताला के किसी को मालूम नहीं कि वो कितने आदमी थे। इसी वास्ते इनके आदादो शमार में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। बामसद्दाक आयत मज़कूरा के अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, अलबत्ता कहेंगे वो 3 हैं, चौथा इनका कुत्ता है, और ये भी कहेंगे कि वो 5 हैं, छठा इनका कुत्ता बगैर देखे निशानी के पत्थर चलाना, और ये भी कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां इनका कुत्ता है। तो कह कि परवरदिगार मेरा खूब जानता है कि कितने आदमी इनके हैं। कुछ सही खबर इनकी नहीं रखते, मगर थोड़े लोग। जब वो लोग 300 बरस के बाद नींद से बेदार हुए, असहाबे कहफ आपस में पूछने लगे एक दूसरे से, चुनाचा हक तआला फरमाता है, तर्जमा, और इसी तरह इनको जगा दिया हमने। फिर वो आपस में पूछने लगे, एक बोला कि कितनी देर सोते रहे तुम? वो बोले कि हम सोते रहे 1 दिन या इससे भी कम। फिर कहने लगे कि तुम्हारा रब बेहतर जानने वाला है कि जितनी देर तुम लोग इस गार में रहे, अब तुम भेजो अपने में से एक को कि ये अपना रुपया लेकर शहर को जाए और वहाँ से कोई खाना पाकीज़ा लेकर आए और नहायत होशियारी से जाए और अपना भेद भी किसी को न बताए। चूँकि वो तकरीबन 300 बरस बाद नींद से बेदार हुए थे तो तमाम असहाबे कहफ पर भूख का गलबा था। इनमें से यमलीखा को शहर में रोटी लाने को नान बाई की दुकान पर भेजा और इनके पास दिनार दकियानूस बादशाह की हुकूमत का था। वही लिए वो रोटी लेने को गया। रोटी वाले ने यमलीखा से पूछा कि मियाँ ये दिनार कहाँ से लाए हो? कहा तुमने कोई गड़ा हुआ दफीना पाया है? क्योंकि मैं तो इस दिनार पर दकियानूस बादशाह का नाम देखता हूँ और इस बादशाह को तो करनों हुए गुजरे और वो तो कभी का मर चुका है और इसका तो कोई भी नामो निशान भी नहीं। अब तुम ऐसा करो कि मुझे भी
इसका कुछ हिस्सा दो, वरना मैं तुझे मौजूदा बादशाह के हुजूर ले जाऊंगा और वो देखते ही तुमसे सब रुपया छीन लेगा। आखिर मजबूर होकर यमलिखा ने इससे अपना सारा किस्सा बयान किया। यह सुनते ही बहुत से आदमी एक जगह पर जमा हो गए और यमलिखा का किस्सा सुनने लगे। यहाँ तक कि ये खबर मौजूदा बादशाह तक पहुंची। बादशाह बहुत आदिल मिजाज था। इसने यमलिखा को अपने हुजूर में तलब किया और यमलिखा से इसकी गुजरी हुई सारी हकीकत पूछी। बादशाह के पूछने पर यमलिखा ने कहा कि हम लोग कई आदमी हैं और बादशाह दकियानूस के जुल्म से भागकर फलाने पहाड़ की खूह में जा रहे हैं। और बाद एक मुद्दत के जब हम लोग अपनी नींद से बेदार हुए तो बेताब हुए और बर्दाश्त न कर सके और बाकी लोगों को वहां बिठाकर मैं अकेला रोटी लेने के वास्ते शहर आया हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत मुतअज्जब हुआ और अलमाए तवारीख जानने वालों को बुलाया और फिर इनसे पूछा कि क्या तुम लोग बता सकते हो कि बादशाह दकियानूस कौन से ज़माने में गुजरा है। इन उलमाए तवारीख ने मुतफिक होकर बादशाह से कहा कि जहाँ पनाह जो बातें यमलिखा ने आपसे अर्ज की हैं वो सब सच हैं। हम लोगों ने तवारीख आलम में पढ़ा है कि बादशाह दकियानूस बड़ा जालिम था और ज़माना साबका में गुजर चुका है। बस ये बादशाह आदिल और मुनसिफ मजाज था। यह हकीकत सुनकर यमलिखा के साथ इस गार में जाने का अज़म किया और नहायत शान शौकत से सवार होकर इस गार पर जा पहुंचा। यमलिखा ने बादशाह से कहा कि अगर आप इस शान शौकत और दबदबे के साथ इनके पास जाएंगे तो वो लोग आपको देखकर डरेंगे और किसी दूसरी जगह जाकर छुप जाएंगे और फिर आपसे कुछ भी बातचीत न करेंगे। मुनासिब है कि आप यहाँ जरा ठहरें और मैं जाकर कह दूं कि बादशाह दकियानूस दुनिया से रुखसत हो चुका है, ताकि इनको खातर जमा हो जाए और इनसे कह दूं कि अब मुसलमान बादशाह है। आओ चलें शहर में। ये बात कहकर यमलिखा इस गार में चला गया और तमाम अहवाल जो इस पर गुजरा था वो इन लोगों से जाकर बयान किया। वो लोग कहने लगे कि हमको अब खाने पीने की कुछ हाजत नहीं और हमको दुनिया से भी कुछ गरज नहीं, हमको तो अपने खुदा ही से काम है। ये कहकर फिर वो लोग सो गए और बाद रावियों ने कहा है कि वो लोग अब तक सो रहे हैं और वो इसी तरह क़यामत तक सोते रहेंगे। यमलिखा फिर बादशाह के पास नहीं आया और बादशाह के साथियों ने काफी देर तक इंतजार किया और फिर बादशाह ने इस खूह में जाने का इरादा किया, लेकिन वो इस गार में जाने से कासिर रहा और अब इसको कोई राह जाने की ना मिल सकी। ना उम्मीद होकर वो बादशाह और इसके साथी वापस आ गए और इसी पहाड़ के किनारे बस्ती में एक इबादत गाह बनाकर वहीं रह गए। और ये एक रवायत है कि सहाबे कहफ के लिए हक ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं और गर्मी और सर्दी वगैरह इनको नहीं लगती। चुनाचा अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, और तू देखे धूप जब निकलती है बच के जाती है इनके खूह से दाहिने को और जब डूबती है कतरा जाती है इनसे बाएं को, ताकि असर गर्मी और सर्दी का इन पर ना पड़े और वो सब लोग मैदान में हैं। और ये अल्लाह ताला की कुदरतों की एक निशानी है और जिसको अल्लाह ताला चाहता है वही सीधा राह पाता है और जिसको वो गुमराह कर दे तो फिर इसको कोई राह दिखाने वाला नहीं, अगरचे इसके करीब ही रफीक क्यों ना हो। और ये भी एक रवायत में है कि वो लोग सब सोते हैं लेकिन इनकी आंखें खुली हुई हैं, ताकि इससे कोई देखने वाला ये समझे कि वो जागते हैं। और हक ताला ने इस जगह पर दहशत रखी है ताकि लोग इस जगह को तमाशा ना बना सकें और वो इस सबब से लंबे आराम हो जाएं। और इनके साथ एक कुत्ता भी लग गया था, वो भी इनके साथ है। मरवी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के क़िबल ज़माने से सहाबे कहफ गार में घुसे हैं और बात कहते हैं कि वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने ही गार में घुसे थे और वो लोग इंजील पर ईमान लाए थे। लेकिन अक्सर का कौल ये है कि दीन और मजहब इनका बजुज़ खुदा के किसी को मालूम नहीं। वल्लाह आलम बिस्सवाब।